Every respect to all of you. Wish you a great year in respect of your health, happiness, and a smile and laughter on your face all around. All of us for everything. Okay. As I said about the topic, solution for all. What is all? All is all age group, all level of the people, everywhere in the world, and irrespective of your trade, irrespective of your job, irrespective of your literacy level. So this is effective to all the people of the society. Because the stress is such a thing कि whether I am a sweeper, whether I am a rag collector, whether I am a business person, whether I am doing service somewhere, whether I am a housewife, whether I am a children, college students, or a professional course doing, or a professional people, all will have a stress. Today morning only I was saying something about कि when your expectation and the reality, if there is a wider difference, it is like a finger. When the fingers are close together, this is the reality. But when the expectation increase, this will spread. The moment it spread, you will never be able to have a close fist. To make it a close fist, your requirement should be reduced. Many a time what happened, we expect a lot of things and the reality is not the same. We compare ourselves. We want this. But by comparing one aspect, other aspect is not with you. Those who are moneyed people, they can have a lot of things. But if you are not moneyed people, if your resources are not there, so you cannot have those things. You need those things, but the reality is not that. So in the reality, what you can do it, those part, if it's your requirement, those are our expectation, then you can fulfill that. The moment you fulfill, there is no stress. It is as simple as this. And the moment this is close, this is the closely associated people. You need a shelter. You need a family. You need a children. You need a friends. You need a day-to-day need. And if that is there, this closeness will be there. The moment more things are coming, it is getting separated, it is getting divided, and many a time it is spread so much that this will create the pain. So remain what you are having it. Remain up to what you can reach it around. I've been saying time and again that stress is the borrowed things. When you borrow something, you have to repay with the interest. Whereas when you give something, you will earn interest. You will earn in terms of the fellowship. You will earn in terms of the friendship. You will earn in terms of the well-being. And these are all the earning of the things. So what you give something, then you will earn. I'll narrate one beautiful things. It's a beautiful example. One of the teacher was having a class. He was talking about the happiness and all those things. And after talking for about half an hour, 1 hour, he said, let me take a test. There were a group of around 50 people. He said to them, I'm giving you all of you a balloon. तुमने समझाइए कि मैं हिंदी में बात करूं? हाँ? नहीं तो हिंदी में बात करूंगा. हिंदी में सबको आएगा, लेकिन हाँ, तो मैं आप सभी को एक बलून देता हूँ. आप उसे फुलाइए और उसके ऊपर आपका नाम लिख लीजिए. आपका नाम लिख लीजिए. सभी 50 जनों ने उनका अपना अपना नाम लिख लिया और उनको कहा कि ये बगल में रूम खाली है, उस रूम के अंदर आप जाके आपका बलून रख लीजिए. सबने जाकर रख लिया. और फिर बाद में दूसरी 2-5 मिनट बात करके बाद में उन्होंने कहा, कभी मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, आप अपना बलून लेकर आइए.
आप अपना बलून लेकर आइए। नतीजा क्या हुआ, सब लोग दौड़े अंदर, क्योंकि 5 मिनट में करना है, और 5 मिनट में करना है। तो वो वहाँ पर धक्का धुक्की हुई, भगदड़ हुई, उसमें कुछ बलून ऐसे ही पैरों से टूट गए, और 5 मिनट हो गई, अलार्म बज गया, किसी के हाथ में एक भी बलून नहीं आया, और सब लोग आके ऐसे ही खड़े रहे। उन्होंने कहा आपके पास, किसी के पास बलून नहीं आया, अब मैं जो बोलता हूँ आप करिए, आपके सभी के पास रहेगा। आपने अपने आप से कोशिश की, लेकिन ये कोशिश आप जिंदगी में करेंगे तो अवश्य आप अपनी चीज तुरंत पा लेंगे। उन्होंने सिर्फ एक ही नुस्खा दिया, आपके पास जो भी बलून रहेगा वो आप लेकर आइए, जिनके फूट गए उनको वापस लिखने के लिए कहा और रख दिया, जो भी मिलेगा वो आप ले लीजिए, और बाहर आकर बोलिए कि ये इसका है, उसको उसका दे दीजिए, और विद इन 5 मिनट एवरीथिंग वाज ओवर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी को देंगे तो हमें वो चीज मिलेगी। अगर आप हैप्पीनेस देंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आप खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेस मिलेगा। तो जो आप देते हैं, देना एक प्रक्रिया, लेना अलग सी प्रक्रिया है। देने की जितनी कोशिश करेंगे आप, तो उतना आप खुद भी पाएंगे। तो कोशिश करनी है कि हाउ वी कैन शेयर द हैप्पीनेस, हाउ वी कैन गिव अ हैप्पीनेस टू द पीपल। द मोमेंट यू स्माइल यू विल गेट द रिस्पॉन्स विद द स्माइल। कोई फिर आंख नहीं निकालता नहीं। और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और ये भाषा दुनिया में चलती है। आप जब स्माइल करेंगे, इट इज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, इट इज अ साइन ऑफ जॉय, इट इज अ साइन ऑफ वेलकम। तो वो अगर आपने साइन अपने चेहरे पर छुपा ली, तो हर जगह पे आप जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो ये आपको मिलेंगे। और ये सभी को लगता है, एट ऑल लेवल। बिजनेस वाला रहेगा तो बिजनेस में लगता है, छोटा आदमी रहेगा तो छोटे आदमी को भी उनका संगत उस हिसाब से बनाता है, और बच्चों के लिए भी लगता है। मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। एंड दिस थेरेपी इज सच, लाफ्टर थेरेपी इज सच कि द मोमेंट यू लाफ देयर इज अ बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन। द मोमेंट देयर इज अ बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन you become a thoughtless, and that is the therapy. जब thoughtless हो गया, वैक्यूम हो गया, so nothing comes in, nothing goes out, you have become a blank, so you will not have a stress. And believe me, दिन में हम लोग 60,000 हमारे विचार रहते हैं, कितने 60,000, so every 1.5 seconds there is a thought, और ये 1.5 सेकंड में एक अगर थॉट है, तो वो ये थॉट, जो थॉट हम लोग मटेरियलाइज कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो थॉट बार वापस नहीं आता है। लेकिन जो मटेरियलाइज नहीं कर सकते हैं, जिनका अपने आप से कोई लेना देना नहीं है, चाहे गवर्नमेंट से हो, चाहे आपके सुपीरियर बॉस से हो, चाहे दूसरे के ऊपर अवलंबित हो, तो वो आपके थॉट मटेरियलाइज नहीं हो गए। अगर गवर्नमेंट रेलवे का उन्होंने क्लू दिया है, रेलवे बड़ा देंगे, आप लंबे रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो आपको 500,000 का भाड़ा बढ़ जाने वाला है महीने में, तो कैन यू डू एनीथिंग? यू कैन नॉट डू इट एनीथिंग। सो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव वे आउट, हाउ यू हैव टू मेक योर बैलेंस। लेकिन हम लोग सोचते रहेंगे तो उससे हमसे कुछ नहीं होगा। अगर आपके बॉस ने आपको कुछ कहा है कि आपको ये करना है, आपका कॉन्शियस माइंड जानता है कि ये ठीक नहीं है, द कंपनी विल इनकर अ लॉस, कंपनी विल बी नॉट सक्सेसफुल, बट येट यू हैव टू डू इट, तो वो आपके बस में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पहला नंबर आए, लेकिन बच्चे की इंटेलिजेंस उतनी नहीं है, आप उसे ट्यूशन देते हैं, आप उसे पढ़ने बिठाते हैं, आप सब एफर्ट करते हैं, उसे सब बुक्स है, गाइड से सब ला के देते हैं, लेकिन पहला नंबर नहीं आता है, क्योंकि उसकी क्षमता उतनी नहीं है। वो क्षमता पहचानने के बदले
हम उसे फोर्स करते हैं, तो वो बच्चा का पढ़ना की पहला नंबर लाना वो आपके बस में नहीं है। आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहला नंबर लाएगा कौन? बच्चा लाएगा। हम लोग उसके पास कोशिश करवा सकते हैं, लेकिन पहला नंबर की जितनी क्षमता रहेगी उतना ही वो करें। दूसरी बात कि आजू बाजू के नेबर यू कैन नॉट चेंज, यू टू एक्सेप्ट। आजू बाजू की सोसाइटी यू कैन नॉट चेंज, यू टू एक्सेप्ट। आपके बगल में अगर कोई हॉल है, हॉल में रोज शादी ब्याह होती है, कैन यू चेंज इट? यू कैन नॉट चेंज इट। सो आइदर यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव इन योर हाउस कि व्हाट यू कैन डू इट, ये ताकि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट से हमारा मटीरियलाइज नहीं होता है, वो रिकरिंग थॉट इज हार्मफुल। थॉट से उतने 60,000 भले आए, 60,000 हमारा मटीरियलाइज हो गए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे पानी पीना है, मैंने पानी का गिलास लिया, पी लिया, खत्म हो गया। मुझे यहाँ पर खा जाती है, मैंने खुजा लिया, खत्म हो गया। मुझे रुमाल निकालना है, मैंने निकाल लिया, वो खत्म हो गया। लेकिन जो नहीं कर पाता हूँ, दैट बिकम अ रिकरिंग थॉट, एंड रिकरिंग थॉट विल हार्म यू। इट विल मेक यू स्लीपलेस, इट मे क्रिएट द एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, एंजाइटी, और उसके वजह से आपको गुस्सा आता है। आपका गुस्सा पहले कहाँ से शुरू होगा? घर से शुरू होगा। घर में बीबी है, बच्चे हैं, जो आपके हाथ के नीचे काम करते हैं, आपके साथ वाले जो काम करते हैं, उनसे शुरू होगा। और अगर ये चीज बहुत दिनों तक रही, देन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द बिग प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, एंड एसिडिटी में लीड टू द अदर थिंग्स, बीपी की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य कि ये चीजें सभी को हो सकती हैं, इवन स्कूल के लेवल में भी बच्चों को हो सकती है कि when they are less competent and they want to compete the first number, or they want to compete the sports person who is the champion, and he is not but a natural talent, many a time natural talent. Even in the office, you want to reach something, but the person who is influential, he may be less capable, but he is influential. वो उनके डायरेक्टर का, किसी का भी लड़का, भाई का लड़का है, बहन का लड़का है, वगैरह वगैरह, तो लेस कॉम्पिटेंट, बट अदर थिंग्स यू मे नॉट हैव इट दोस थिंग्स। तो हमें कहीं ना कहीं वो जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल फिनोमिनन, यू टू एक्सेप्ट। अगर जैसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो पार्ट आएगा, लेकिन जल्दी निकल जाएगा। इट विल नॉट बी अ रिकरिंग थॉट, द थॉट विल कम, इट मे नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड, बट यू कैन बी इन अ पोजिशन टू टेक इट, चलो अभी हो गया, बस हो गया। इट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, यू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड थिंग इज ओवर। तो ये चीजें। और दूसरी एक बात, जैसे मैंने बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन की बात की, उसी तरह जो चीजों में बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन रहेगा तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? और हर लेवल के लिए एकाग्रता चाहिए, तो आपका काम कुछ समय में हो जाएगा, टाइम में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। यू विल हैव एक्स्ट्रा टाइम टू डू समथिंग मोर। कम टाइम में अगर आप कर सकते हैं, एक्यूरेसी से कर सकते हैं, आपके पास टाइम रहेगा, एंड द मोमेंट यू डू विद द एक्यूरेसी, यू विल हैव अपलोड। सबके पास से शाबाशी मिले कि चलो ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो वो चीज़ें होती हैं। दूसरी बात कि जब आप किसी को स्माइल देते हैं तो यू गेट द स्माइल, तो ग्रेजुअली यू क्रिएट द फेलोशिप, फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होता है, एंड दिस हेल्प यू एट ऑल द लेवल, whether it is a lower level, whether it is a higher level, whether it is a society, whether it is a neighbor, whether it is a community. Even this works even in the train. Even when you meet first time with a smile and all those things, people may offer you a seat, people may make a place to seat you around, लेकिन ऐसे करके करेंगे तो कोई तुमको जगह नहीं देगा. So this help you even in the every walk of life. Then one more thing, we say laughter is a serious business. Laughter is a serious business. All cannot do it because you are doing something without the stimulant. आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है, आपको जोक कह नहीं रहा है, फिर भी आपको हंसना है, तो you need lot of confidence in the life, and this will build the confidence.
This will build a confidence. When you can do it, when out of 10, 9 cannot do it, if a one person can do it, so that person is a confidence person. So it will brings a lot of confidence. हमारे में एकदम ऐसा हो जाएगा कि हम कर पाएंगे, और ज़िंदगी में हम कर पाएंगे तो बाकी लोग पीछे रहते हैं। दो जनों में अंतर बहुत छोटा रहता है। अचीवर और नॉन अचीवर के अंदर दोनों में टैलेंट रहता है, लेकिन जो हम लोग कहते हैं ना एक्स्ट्रा एज, दिस विल गेट यू एक्स्ट्रा एज, एंड दैट एक्स्ट्रा एज मेक यू ahead of the people in the society, ahead in the life. So this extra age, you can get it with this therapy. And positive attitude. Positive attitude is a very, very big thing. We say time and again we have to be positive in the life. लेकिन जब पॉजिटिव बनना रहता है, हकारात्मक बनना रहता है, तो बन नहीं पाते हैं। हमें लोगों को एडवाइस देने में हो जाते हैं हम लोग, लेकिन आपको पॉजिटिव होना है, आपको पॉजिटिव होना है, लेकिन जब हमारी बारी आती हो तो हम नहीं कर पाते। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड इनके माध्यम से आपकी आती है। मैं मेरे एक दो किस्से बोल देता हूँ कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई पूना में डेथ हो गई। तो अगले दिन हम सिस्टर के उधर थे, और हमारा कस्टम ऐसा है कि अगर डेथ हो जाती है, अगर इफ़ यू स्टे बैक देयर, you need to stay for all the 13 days. तो 13 डेज का जो राइट्स होता है, वो राइट्स ख़त्म करके बाद में यू कैन गो बैक. अदरवाइज यू हैव टू गो ऑन द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर द crematorium part is over, you can go back to your place and come during that 10वां 11वां 12वां 13वां के टाइम वापस you can go back. So after coming from there, next I was in the laughter club. See, all these things, what we are doing, it is a routine of the life. The moment you make a routine of the life, कि जैसे मुझे नहाने की ज़रूरत है, जैसे मुझे ब्रश की ज़रूरत है, जैसे मुझे क्लीन कपड़े पहनने की ज़रूरत है, उसी तरह दिस बिकम द रूटीन पार्ट ऑफ द लाइफ. हम लोग ब्रेथलेस हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, हम लोग खाना भी खाते हैं, हम लोग यहाँ पर जो जाते हैं वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते हैं. हाँ, अगर आपको ड्रामा में जाना है, पिक्चर में जाना है तो नहीं जाना है, बराबर है, बट दिस इज द रूटीन ऑफ. यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, आप रूटीन में करते हैं ताकि आपकी बॉडी सही रहे. वहाँ पर आपको कंसोलेशन वो लेना है कि हमने जो कुछ करना था वो हमने किया. बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, एंड एवरीवन नोज कि जो आदमी इस धरती पे आएगा वो आदमी को कहीं ना कहीं किसी भी दिन जाना है, और वो मृत्यु की तारीख, मृत्यु का समय, मृत्यु के नंबर ऑफ ब्रीथ वो भी पहले से तय है. तो वो तो होना ही है, वो होना है कहीं ना कहीं. तो वो पकड़ के चले गए तो आप हर चीज कर पाएंगे. यू हैव टू कम इन द नॉर्मल लाइफ, यू हैव टू कम इन द रूटीन. आई बीन टेलिंग पीपल, अभी भी हमारे एक मित्र गुजर गए तो उनकी बीबी के पास जाके मैंने कहा कि यू हैव टू कम इन द रूटीन फास्ट. अगर आप रूटीन में फास्ट नहीं आएंगे तो दिस विल नॉट गो आउट ऑफ योर माइंड. और अगर माइंड से नहीं जाएगा तो आपकी दिक्कतें बढ़ेगी. बिकॉज ऑल द टाइम यू आर ऑल अलोन, ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट दिस. बच्चे, रिश्तेदार सब लोग चले जाएंगे. तो यू हैव टू कम इन द रूटीन, और रूटीन में आएंगे तो यू बिकम स्ट्रेस में. तो क्या होता कि ये सब चीजें, प्लीज कम. Dr. Madhani, sir. Yeah. Please. It's all right. Sorry about this. नहीं सर. तो दिस बिकम रूटीन में अगर हम लोग आ गए जल्दी में तो हम लोग जीत गए. अगर रूटीन में नहीं आते हैं तो हमारा स्ट्रेस इट बिकम अ परमानेंट. और आज के दौर में ऐसा है कि स्ट्रेस लोगों को इतना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 10 में से 5 जन को हाइपरटेंशन है, 10 में से 5 जन को डायबिटीज़ है, 10 में से 3 जन को दोनों चीज़ें हैं.
तो ये सब चीज़ें हम लोग को ऑटोमेटिक विरासत में मिल जाती है, और अगर ये विरासत में मिल गई तो इनकी गोलियां है वो परमानेंट हो जाती है। और इन्हीं की गोली टेम्परेरी नहीं रहती है कि 1 दिन में कि 2 दिन में कि 4 दिन के बाद में बंद करो, ऐसा नहीं, ये परमानेंट टैबलेट होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरा एक रिसर्च किया है, इन अनदर 5 years टाइम इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ द डिसीजेस। आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल 5 स्टार हॉस्पिटल आ रहे हैं वो आपके बलमनसाई के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्हें मालूम है रोगों का इतना यहाँ पर उपद्रव होगा कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, और उनके ट्रीटमेंट 5 स्टार होटल की तरह रहता है। आज कोई भी हॉस्पिटल में आपने किसी को दाखिल करना है तो कितना ढेर सारा पैसा एंट्रेंस फी ले लेते हैं। एंट्रेंस फी आपका अगर मेडिक्लेम नहीं रहेगा तो आपका बिल कितना आएगा मुझे मालूम नहीं है। परसों के दिन एक बहन मुझे मिली थी, मुझे कहा कि मेरा सेफी में मेरी माताजी हॉस्पिटल में थी तो आईसीयू में थी, तो एवरी डे का 40,000 रुपीज़ बिल आने का, एवरी डे 40,000, एंड ऑलवेज एडवांस पेमेंट की तरह पहले से ही आज इतना भर दो, आज इतना भर दो, आज इतना भर दो। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि हर आदमी उतना रिसोर्सफुल नहीं रहता है, उनका क्या होगा उनका। और ये थेरेपी के माध्यम से यू विल फील अ डिफरेंस, दैट इज 100%। हमारे यहाँ पर एक बहन आती है, उसका बाईपास चलेगा, बाईपास सही मायने में चलेगा। वो बहन आईसीयू में एडमिट भी हो गई, लेकिन नेक्स्ट डे जब ऑपरेशन करना था उसी रात को डॉक्टर को कुछ फ़ोन आ गया, उनके परिवार में कुछ अर्जेंसी क्रिएट हुई आउट ऑफ मुंबई, तो उससे इमीडिएटली जाना पड़ा। 4-5 दिन के लिए उससे हॉस्पिटल ने, अथॉरिटी ने उनको डिस्चार्ज किया कि अब 5 दिन के बाद में हम लोग करेंगे। नतीजा क्या हुआ कि उनके फैमिली डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको जहीं पर भी ठीक लगता है उधर आप जाइए, वहाँ पर वॉक करिए, वहाँ पर एक्सरसाइज करिए। एंड शी केम टू लाफ्टर क्लब। वेरी फर्स्ट डे शी फेल्ट इट वेल एंड ग्रेजुअली शी रिकवर्ड। नाउ 4 साल हो गए, अभी बाईपास की कोई ज़रूरत नहीं। वो पानी भी नहीं पी पाती थी, पानी भी नहीं पी पाती, तो आज शी कैन हैव इट एनी अमाउंट ऑफ वाटर। सो दिस मेक्स अ डिफरेंस। वो रिपोर्ट तो मुझे मालूम नहीं था उसका पहले जब ज्वाइन हुए तब, लेकिन देन शी सेड टू मी कि दिस इज हैपेंड नाउ आई डोंट नीड। सो दिस मिरेकल कैन नॉट हैपन, दिस चेंजेस कैन नॉट हैपन, बिकॉज कभी परिवार में कभी हंसने का मौका ही नहीं मिलता है। बीइंग अ सीनियर पर्सन, सीनियर मोस्ट पर्सन इन द फैमिली, many a time your position make you a serious person, your position in the family। अगर आप हलते मिलते रहेंगे तो कोई आपकी सुनेगा नहीं, ऑफिस में हिलते मिलते रहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। तो कभी कभी सीरियस हमें हमारी पोजीशन बना लेती है, हम चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसी तरह एक बहन है, 25 गोलियां रहती दिन में। सुबह उठने के पहले बहू है, बेटा है, बेटियां हैं, एक हाथ लगेगा, दूसरा हाथ, दूसरा एक पैर लेगा, ये गरम करेंगे, वो करेंगे, मालिश करेंगे, मसाज करेंगे, तब उठ सकते थे। और रोज की 25 गोलियां लेते हैं, जो उसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रन आज मेरे साथ में 90 साल के लोग मट्टी के अंदर दौड़ते हैं, घुटने, शोल्डर, वो बैक तो अच्छा होता ही है, लेकिन ये जो बीमारियां है जो नॉर्मल कोर्स में अच्छी नहीं होती है, वो सब उनको अच्छा लगने लगा। और दूसरी बात कि जो आपकी नेचर में जो बदलाव होता है, आपकी सोच में बदलाव होता है, वो नेचर का बदलाव, सोच का बदलाव, दैट इज ट्रेमेंडस। वो आप खुद मेजर नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कोई आपका दूसरा कोई व्यक्ति मिलता है, आपके रिश्तेदार मिलते हैं, तो वो आपको पहचान पाएंगे, अरे आप में इतना चेंज हो गया। आपके परिवार के लोग आपको महसूस करेंगे। मैं एक उदाहरण दूँ कि मेरे उधर एक छोटा बच्चा आया एक दिन, करीबन 12 साल का था बच्चा, और आया मेरे पास, बोले कि आपने दादाजी को क्या किया है। बोले कि दादाजी आते हैं, एक्सरसाइज करते, लाफ्टर करते और जाते हैं।
तो बोले कि दादाजी अभी गुस्सा नहीं होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो दादाजी एट द एज ऑफ 70, हम आज अगर किसी को बोलते हैं कि आपकी ये आदतें बदलो, तो हम कहते हैं कि हम 70 के हुए, हमें आदत चेंज करने के लिए कहते हैं, तो वो नहीं कर पाए। तो लेकिन ये थेरेपी के माध्यम से उनमें बदलाव हो गए, और बदलाव छोटे बच्चे भी महसूस कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इट इज़ सो इफेक्टिव। दूसरा कि इसके माध्यम से योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर एटीट्यूड, एवरीथिंग चेंजेस है ना। कि मेरे यहाँ पर एक जन था, वो करीबन 18 साल की उम्र से सिगारेट पीता था। 18 साल से 60 तक उसने रोज के 25 से सिगारेट पिए हैं। तो कितना रुपया खर्चा किया वो जाने दो। कम से कम 3-4 टाइम उन्होंने कोशिश भी की कि मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाया। हर इससे रिसोर्सफुल था कि हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, लेकिन फिर भी वापस चालू हो जाते थे। लेकिन लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, एटीट्यूड में बदलाव आया, एंड दैट कैन हेल्प द पर्सन टू डू द थिंग्स। मैं करूँगा, वो जीद है हमारी, वो जीद में बढ़ावा होता है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। और ये चीज़ें हर पहलू में हमें काम आती हैं, जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो नौकरी धंधा हो, चाहे घर का कारोबार हो, चाहे सोसाइटी का कारोबार, कि कम्युनिटी का कारोबार हो, कि देश का कारोबार हो। हर पहलू में आप अव्वल रह गए हैं। और अव्वल और आप में और लोगों में थोड़ा ही अंतर है। ये जो मैं करूँगा और जो बाकी लोग में वो मैं करूँगा नहीं रहेगा, तो वो जो फ़र्क है आपको भी नहीं आता है, उन्हें भी नहीं आता है। लेकिन मैं करूँगा जो तुम्हारी जीत है, वो आपको उनसे आगे लेकर जाएगा। रेस के घोड़े में सब लोग, सबकी क्षमता रहती, सबको पहला आना है। लेकिन जो छोटा सा एज रहता है जॉकी का, वो एज के माध्यम से ही बिकम द फर्स्ट विनर बन जाता है, और बाकी लूजर बन जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि विनर बनना है। और जिंदगी, और देखो हमारी सेहत जो है वो है, हमारी सेहत हमें सुधारने की कोशिश करनी है। जो है उसको रोना नहीं है। आई हैव बीन गोइंग टू द कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, उनके पास जाता हूँ। जो है उसका रो मत, वो उससे बदलाव ला सकते। जो कैंसर हो गया है वो है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कैसे अच्छे रहें। अगर कैंसर के साथ में, किडनी के साथ में अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो उसमें और भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो बढ़ता नहीं है। दिस बिकम अ सपोर्ट सिस्टम, दिस बिकम अल्टरनेटिव मेडिसिन। और अल्टरनेटिव मेडिसिन का उसने अगर काम कर लिया तो आपकी सेहत अवश्य अच्छी हो जाएगी। मैं पार्किंसन के, हमारे एक मित्र आते, आज तक दवा नहीं है। मैं आज से 5-7 साल पहले की बात करता हूँ कि यूज्ड टू कम रेगुलरली हमारे उधर। अभी नहीं है वो, he died at the age of 85। तो पार्किंसन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ताज होटल में हुई। जो वर्ल्ड के जो बड़े डॉक्टर थे वो वहाँ पर प्रिसाइड कर रहे थे। एंड दिस पर्सन हाईली एलिट क्लास के थे, तो वो भी वो कॉन्फ्रेंस में गए। और उन्होंने वहाँ पर उस बॉस को सवाल किया, प्रेसिडेंट को, कि आई एम गोइंग टू द लाफ्टर थेरेपी। अगर ये जो मेरा पार्किंसन है इतने सालों से, तो मुझे उसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, आप मुझे बताइए। आप मानिएगा मत कि उस डॉक्टर ने कहा कि आपका जो ये पार्किंसन का रोग है, रोग मिटता नहीं है किसी का, दवा कोई है नहीं, लेकिन इनमें जो बढ़ोतरी होती है, वो जो स्पीड है, वो स्पीड ये थेरेपी के माध्यम से रिड्यूस होगी। तो ये स्पीड रिड्यूस होती है तो कितनी बड़ी दवा है, कितनी बड़ी दवा है। तो कहने का तात्पर्य क्या होता कि, और वो व्यक्ति पहले ग्राउंड के अंदर प्रियदर्शनी पार्क में आधा राउंड लगा के थक जाते थे। हमारे साथ में फिर एक करने के बाद में, 1 घंटे का ये प्रोग्राम करने के बाद में 2 राउंड आराम से लगाते थे। तो उनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य, दीज आर द थिंग, दीज आर द गेन, एंड दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू द पीपल। हम लोग का मैं
मेरा स्वास्थ्य ही अच्छा है, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं कोई गोली नहीं लेता हूँ, मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ, लेकिन माई पैरामीटर कैन नॉट बी अदर्स पैरामीटर। लेकिन जो लोग हमारे यहाँ पर आए उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनकी मैं बात कर सकता हूँ कि इनको ये हुआ। एक बहन के बाल बहुत लंबे थे और बाल वो चोटी बना नहीं पाते थे क्योंकि हाथ जा नहीं रहे थे, फ्रोजन शोल्डर, और उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 85 थी। कुछ दिन आ गए, कुछ महीने आ गए, उनके आप पीछे जाने लगे। एंड मल्टीपल थिंग वर्क्स, ही नोज इट कि वी हैव बीन डूइंग वंडरफुल एक्सरसाइज, why and the laughter both combined together make the person healthy. क्योंकि laughter club is a package of fitness, physical, mental, spiritual, religious fitness, all the fitness makes the person healthy. सब लोग सब साथ में कंबाइंड रहेगा तो आदमी हेल्दी बनता है। तो जो हेल्दी की जो परिभाषा है यहाँ पर, हेल्दी बनने की जो परिभाषा है वो लाफ्टर क्लब में बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या कि देयर आर इन नंबर ऑफ थिंग्स। दीपक चोपड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दीपक चोपड़ा इज अ वंडरफुल पर्सन। तो उसका बॉडी, माइंड एंड सोल के ऊपर एक लेक्चर था भारतीय विद्या भवन में। उसके पहले उसका एक 3 डेज सेमिनार गोवा में था और चार्जेस में 90,000 रुपीज़ फॉर द 3 डे एंड इट वॉज टोटली फुल। more than 300 people took part in that seminar. और उसके बाद में भारतीय विद्या भवन में हुआ था। फॉर्चुनेटली आई हैड अ कार्ड। लोग नीचे ज़मीन पर बैठे थे, नीचे ज़मीन पर बैठे थे और उसमें सब एफ्लुएंट क्लास के मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, बिजनेस वाले, एंटरप्रेन्योर्स, लॉट ऑफ हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द पीपल, सब लोग बैठे थे। उन्होंने हर सीट के ऊपर एक पर्चा रखा था कि आपको कोई सवाल पूछना होगा था। तो हमने उनको सवाल पूछा कि आपकी जो बॉडी, माइंड एंड सोल, वो जो थेरेपी है, whether the laughter therapy works on it or not, please elaborate and explain. तो सबसे पहला पर्चा हमारा निकला and he explained the thing for more than 15 minutes. More than 15 minutes. The essence of it was, you know, कि अल्टीमेटली समाधि जो रहता है, हम लोग जो समाधि की बात करते हैं कि मीन्स वो स्टेज पर पहुंचो कि समाधि आपके लग जाए, तो वो समाधि का स्टेज ये थेरेपी के माध्यम से जल्दी आता है। तो द पर्सन हु इज अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट हैज सेड दिस। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ बातें की हैं, बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ बातें। गांधी जी ने कहा है कि अगर मैं नहीं हंसता था तो मैं शायद पागल हो जाता था, नहीं तो सुसाइड कर लेता था। मदर टेरेसा ने कहा है कि इवन द स्मॉल स्माइल मेक्स डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल। चार्ली चैपलिन ने कहा जिस दिन मैं नहीं हंसा हूँ मेरे जिंदगी का सबसे खराब दिन था। तो आज कोई भी मैगजीन में आप आर्टिकल देखेंगे, हेल्थ के ऊपर आर्टिकल रहेगा तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, करने में कहीं ना कहीं हास्य रहेगा। ये आपको हंसना है, आपको हंसना है। तो हंसना है तो वो ऑटोमेटिक तो कहीं नहीं मिलता है, आप जब कोशिश करेंगे तो है। और काफ़ी लोग कहते हैं मुझे कि हम लोग बहुत हंसते हैं। हमारा लोगों का नाम है, नाम लिम्का बुक में है, इंडिया बुक में है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, एलिट वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो सब में हमारा नाम है कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया है। हम लोग 260 लोग ऐसे एक सर्कल में खड़े रहे। पहला हम हंसे, फिर बाजू वाले हंसे, उनके बाजू वाले हंसे, उनके बाजू वाले, और सर्कल कंप्लीट किया। वो पूरा सर्कल कंप्लीट होकर आ गया। आप अंदाजा करिए कितने समय में ये सर्कल हुआ होगा, कितने समय में सर्कल हुआ होगा? हाँ, कितने मिनट में सर्कल? मैं हंसा, इनके पास ये ऐसे करके पूरा सर्कल खत्म कर दिया और सर्कल खत्म होकर हमारे पास वापस आ गया। तो आप सोचिए कि कितने समय में ये सर्कल खत्म हो सकता है। गेस इट ना। एक मिनट हंसा तो भी 4 मिनट में कितने जाओ? हाँ, कितना अगर पहले मैंने बोला होगा, जिनको मालूम रहेगा तो वो मत बोलिए, जिनको नहीं मालूम है वो कोशिश करिए। जस्ट गेस इट एंड टेल अराउंड। कितना समय लगेगा दादाजी? 260।
260। एक मिनट किया तो 4.5 आवर, एक डेढ़ घंटे में। हाँ, आप बताइए। सी इनमें क्या है मालूम है कि मैं ऐसा, ये ऐसे सब लोग ऐसे ऐसे राउंड ख़त्म हुआ, मैंने पास किया, उस तरह से करना है। तो पूरे सिर्फ 1 मिनट में 260 लोगों ने हंस लिया, और एक के बाद एक, साथ में नहीं। 1 मिनट में 260 हंसे, उसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 4.3, 1 सेकंड में 4.3। आई हैड अ वीडियो पीपल, वीडियो शूटिंग के लिए हमने एक कैमरा मंगाया था, तो उसका भी पूरा सर्कल ख़त्म नहीं हुआ। वो मेरे को बोल रहा है कि आप इतना जोर में कर रहे थे कि इतना जल्दी हो रहा था कि पता ही नहीं चला। तो जब हम हंसते हैं, हम लोग जब हम कहते हैं हम बहुत हंसते हैं, तो 1 सेकंड में 4.3 हुआ। वो कैसे होता है? आपको किसी ने जोक बोला तो यही होता है, यही होता है। आप लंबा नहीं हंसते, ऐसे नहीं करते। आप जो भी कहीं जो मुस्कुराते हैं कि जो हंसते हैं, वो कुछ फ्रैक्शन के लिए रहता है और बाद में बंद हो जाता है। तो ये इतना फ्रैक्शन ही रहता है। तो हम जब कहते हैं कि हम बहुत जन हंसते हैं, बहुत समय हंसता हूँ, बहुत बहुत टाइम हंसता हूँ, तो वो हंसी लंबी रहती नहीं है। जो हम लोग जो करते हैं, 1 घंटा हमारा प्रोग्राम रहता है, तो अबाउट 40-45 मिनट एक्सरसाइज रहते हैं, फिर बाद में 15-20 मिनट लाफ्टर के रहते हैं। अगर 15 मिनट आप लाफ्टर करते तो कितना हो गए? 900 सेकेंड्स। कितना? 900 सेकेंड आप हंस रहे हैं, और यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हंस रहे हैं। तो कितना बड़ा अंतर है। और दूसरा क्या मालूम है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हम लोग फिजिकली कहीं ना कहीं जाते हैं, हम लोग ये करते, लेकिन अंदर के ऑर्गन को एक्सरसाइज होती है। लाफ्टर इज द बेस्ट मसाज टू ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, चाहे वो फेस के हो, चाहे यहाँ के हो, कि और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। और जैसे आप मसाज करेंगे आपको अच्छा लगता है। हम लोग मसाज करके सो जाते हैं, नींद आती है। मसाजर आ गया, मसाज किया, और आपको रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि बॉडी का मसाज हुआ तो आपको ऑयलिंग हो गया। तो ये जो ऑयलिंग है कि मसाज है, दिस लाफ्टर गिव्स द वंडरफुल इफेक्ट, और वो इफेक्ट बाकी कहीं से भी नहीं आता है। और एंड दिस यू गेट इट, है ना। फेस के तो होते ही है। फेस का तो जब आप हंसेंगे, बड़ा गाल होगा, मुंह छोटा होगा, बड़ा होगा। और दूसरी बात कि जो फेस है आपका टोन अप रहता है, उसमें रिंकल कम रहता है, उसमें बल्ज कम रहता है, एंड लाफ्टर एड्स इनटू इट। आपने कितना भारी सूट पहना, कितना भारी ड्रेस पहना, कितने अच्छे ऑर्नामेंट डाले हैं, लेकिन इफ इट इज नॉट विद द स्माइल, आपका कोई भी कितना भारी ड्रेस कोई नोटिस नहीं करता है। जो स्माइल वाला आदमी रहेगा, जो हंसी खुशी वाला आदमी रहेगा, उसके आजू बाजू 10 आदमी रहते हैं, लेकिन जो ऐसा रहेगा उसके साथ कोई नहीं, नोबडी नोटिस। तो कहने का तात्पर्य कि इवन द सोसाइटी एक्सेप्ट यू, कि आप हंसी है, आपका चेहरा अच्छा बनाइए। और चेहरा अच्छा बनाना आपके पास है, उसकी कोई गोली बजाने में मिलती नहीं है। हमें एफर्ट करना है, एफर्ट के बिना कुछ नहीं मिलता है। हम कोशिश करेंगे तो होगा। मन में ऐसे मत बने कि मेरा नेचर पहले से ऐसा है। एवरी टाइम यू कैन लर्न, एट एनी एज यू कैन लर्निंग आ गया, और ये चीज़ें आ गई जिंदगी में, तो जिंदगी बेड़ा पार हो जाती है। किसी ने बहुत अच्छा सुंदर बात की है, जो हंसता है, जो हंसाता है, जो हंस देता है, वो जिंदगी में हर जगह पे, हर पहलू में, हर लेवल में वो ऊपर रहता है सबसे। हंस देना बहुत कठिन बात है। लाफ इट ऑफ, वी से लाफ इट ऑफ। तो लाफ इट ऑफ कहना बहुत बहुत कठिन है। अगर कोई झगड़ा हुआ और हम झगड़ा छोड़ के चले गए, बोले कि ठीक है तुम अच्छा है, चलो जाने दो, तो वो बोलना बहुत कठिन है। और ये कठिन चीज़ अगर आप में जीवन में आ गई, तो हर जगह पे आप आगे निकल जाएंगे, अव्वल रहेंगे। और दूसरी एक बात मान लीजिएगा, परिवार में एक पॉजिटिव आदमी रहेगा
तो पूरा परिवार पॉजिटिव बनता है। अगर एक नेगेटिव आदमी रहेगा तो नेगेटिविटी पूरे घर में फैल जाती है। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी वो प्लेस से पता चल जाती है। हम स्मशान में गए तो किसी का भी चेहरा ग्लो नहीं होगा, हैप्पी नहीं रहेगा, इट इज फुल ऑफ नेगेटिविटी। कोई भी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाओ तो आपका चेहरा पता चल जाता है। आप घर पे गए, बेल मारा, बीबी बोलेगी कि किधर जा गया है, आपको बोलना नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई इंक्रीमेंट हो गया, अच्छी बात हो गई कि आपका कोई किसी से लेना था पैसा, वो पैसा आ गया, घर पे बेल मारी, बीबी बोले कि क्या बहुत खुश है, तो आपका चेहरा बोल देता है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की असर तुमको तुरंत होती है, वो तुरंत होती है। इट इज अ इमीडिएट इफेक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑन द पीपल। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। हम लोग आर्थर रोड जेल में गए थे। आर्थर रोड जेल में हार्डकोर क्रिमिनल को हमने टॉक दिया। हार्डकोर क्रिमिनल यानी कि जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, और करीबन वो 150-200 लोग थे, और 200 लोग को हमने बात की लाफ्टर थेरेपी। और मेरे साथ में कुछ मेरे कलीग थे, 3-4 कलीग थे मेरे साथ में आए थे, और वो जो हंस रहे थे, हंसने का कार्यक्रम हमारा ख़त्म होगा, फिर सुप्रिटेंडेंट के साथ में हम बैठे थे, तो उनकी आवाज़ यहाँ तक वापस आ रही थी मुझे, उनका जारी था। और एक बहन उनमें से मुझे शाम को फ़ोन किया कि किशोर भाई कि मेरा सर अभी भी हैवी लग रहा है। तो बोले कि वो जो नेगेटिविटी एनवायरनमेंट की है, वो नेगेटिविटी आप बाहर निकाल नहीं पाए, वो नेगेटिविटी की वजह से आपको हैवी लग रहा है। तो वो नेगेटिविटी में आप सिर्फ बैठे हैं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यू आर नॉट अ क्रिमिनल पर्सन, बट वो जो एरिया की जो नेगेटिविटी है, वो एटमॉस्फेयर की नेगेटिविटी, उसकी असर कहाँ तक रहती है। तो कहने का तात्पर्य क्या कि हम हमारी चॉइस की जो भी चीज़ रहेगी, तो जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर जाना नहीं है, नहीं तो वो असर मनुष्य के ऊपर होती है। जहाँ पर पॉजिटिविटी है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन की असर होती है। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि कॉस्मिक रेस की असर मंदिरों में, कुछ मंदिरों में ज़्यादा असर होती है, वैसे जगह पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आती है। तो वो एनवायरनमेंट में अगर हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य कि एवरीथिंग इज विद इन यू हैव टू फाइंड आउट। इट इज देयर इज नो मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट, यू हैव टू बी अ सेलेक्टिव। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, और जो क्या करना तुम्हें सही ढंग से आ गया तो जीवन अपना ही है। हम लोग आपके दिन नहीं बढ़ाएंगे, आपके साल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ द लाइफ तो तुम्हारी बन जाए। हमारा ग्रुप करीबन 35 जन लोग, हम लोग दुबई आ रहे हैं, और सब मिडिल क्लास के लोग हैं। कम से कम 12 जन तो पासपोर्ट बना रहे हैं जिनका पासपोर्ट भी नहीं था, और उनको पासपोर्ट बनाने में भी दिक्कत है। तो कितने पॉजिटिव हो गए। उनको हमने कहा कि जो तुम्हारा पैसा वो तुम्हारा पैसा है, जो तुमने नहीं किया वो तुम्हारे लिए करिए। तुम्हारे कुछ परिवार के लोग तुम्हारा विरोध भी करेंगे, क्योंकि वो समझे कि ये फिजूल खर्च हो रहा है। लेकिन जब तक आप प्लेन में नहीं बैठे, कोई फॉरेन कंट्री में नहीं गए, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, लेकिन तुम्हें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरना था, बच्चे फॉर्म भी नहीं भर के दे रहे कि माँ बाप खोटा खर्चा कर रहे हैं हमारा। तो कहने का था कि जो तुम्हारी चीज़ है, हमारी चीज़ हम कितना एंजॉय कर पाते हैं। हम बस में जाने के लिए नहीं जाते कि चलो 5 रुपया 7 रुपया 8 रुपया बचेगा, और बच्चे टैक्सी में बैठते हैं। हम लारी के ऊपर खाने के लिए भी सोचते ही 4 टाइम, नहीं लारी पे नहीं खाना है, 10 रुपया नहीं बिगाड़ना, घर पे जाके खा लेंगे। लेकिन बच्चे 3 स्टार होटल में जाके 500-1000 खर्चा कर देते। हम लोग घर पे DVD लाकर घर पे पिक्चर देखते पूरे परिवार, और ये आइनॉक्स में जाके 400 रुपये की टिकट में बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जो आप नहीं करते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज है, आप एंजॉय करिए, आप एंजॉय करिए। आपकी चीज़ें आपको एंजॉय करनी है, उनकी बहुत ज़्यादा मत सोचिए।
उनकी बहुत ज़्यादा मत सोचिए। ठीक है, आपको आपके पैसे चाहिए, अगर मेरा इंटरेस्ट का पैसा मुझे हर महीने अमुक पैसा मिलता है कि डिविडेंड का पैसा हर महीने अमुक मिलता है, तो मुझे चिंता नहीं है। अकेले का कितना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का कितना चाहिए, वो सोचिए, वो सोचिए। और डॉक्टर मेडिकल का कोई भी डर दिखाता है, वो डरने की ज़रूरत नहीं। अगर मेडिक्लेम ले लिया तो वो डरने की ज़रूरत नहीं। और अगर वो कुछ होना भी है तो काहे के लिए चिंता। हो गए। मैं दूसरी एक बात, मैं परसों के दिन एक आर्टिकल पढ़ा कि आजकल जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें 50% ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो कि स्टैंड हो एंजियोग्राफी हो। आपके ऊपर डर बैठा देते हैं। आपको जो चेकअप करना, आपको साल में 2 टाइम चेकअप करना, वो भी एक डर है। और डर के माध्यम से आपको आपका डायग्नोसिस करेंगे, आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, बाकायदा उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। और ये सब कराने के बाद में भी कोई गारंटी देता है कि आप इतने साल जिएंगे। और अगर वो हो भी गया, वो डिसीज है आप में, तो कोई कह सकता है कि आप इतने दिन में गुजर जाएंगे, कोई कह सकता है। लेकिन हम डर के माध्यम से हम आधे ऐसे ही मर जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि ऐसा होगा, हम बोले क्यों ऐसा होगा। मैं एक छोटा सा मेरा उदाहरण दूँ मेडिकल टेस्ट के बारे में। मैं मुझे यहाँ जर्मनी से नहीं होता था वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस का, तो आई वॉज 60+। तो मैंने बोला कि फॉरेन मेडिकल पॉलिसी निकाल कर हम लोग जाएंगे। तो पॉलिसी का एक कॉलम था कि यू नीड टू अंडरगो दिस सब रिपोर्ट। तो सब रिपोर्ट में ओके आएगा, देन दे कैन इशू द पॉलिसी। तभी हम तो कितने सालों के बाद में गए, जो उन्होंने बोला वो दे दिया और रिपोर्ट ने। तो डॉक्टर बोलता कि आई विल नॉट साइन, क्योंकि आपका कार्डियो बराबर नहीं आया। तो बोले कि तो कैसा करेंगे। तो बोले कि आपका स्ट्रेस टेस्ट लेंगे। बोले ठीक है, वो ले लीजिए। तो स्ट्रेस टेस्ट के लिए मुझे जो ट्रेड का जो रहता है उसके ऊपर, वॉकर्स के ऊपर, मेरे को बोला कि आप इसके ऊपर चलो। 1 मिनट चलाया, दौड़ाया, जो था वो मैंने ख़त्म किया। तो मेरे को बोले कि आपका ये बराबर नहीं आया, अभी आपका एनजीओ करना पड़ेगा। मैंने उनको, जो सुपरविज़न करता था, मैंने उनको बोला कि आई हैव अंडरगॉन ऑल दिस थिंग्स, जिम में वो सब, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन। बोले कि मैं जब दौड़ता था, मैं जब फास्ट चलता था, कभी भी मैं यहाँ पर तुम्हारे आगे के रॉड को टच हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, तो मेरा टेस्ट क्यों बराबर नहीं हुआ। अब मुझे कोई कारण बनाएंगे ना कि अगर आप मुझे 1 मिनट दौड़ाते हैं तो मैं आगे टच हो गया, कि मैं ऊपर थक गया, कि मैं ऊपर रुक गया, कि मैं नीचे उतर गया, तो मेरा टेस्ट बराबर नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं हुआ है। और दूसरी बात बोले कि आपके यहाँ कितने जन का स्टाफ है। मेरे को बोला मेरे उधर 80 जन का स्टाफ है। बोला कि आप में से जो भी कोई स्वस्थ रहेगा ना, उनको बोलो मेरे साथ में 100 मीटर दौड़ने के लिए। वो मेरे साथ में 100 मीटर दौड़े। मेरी उम्र इतनी है, उनकी उम्र कम रहेगी, कोई अर्जा नहीं, और उसके मेरे साथ में कंपटीशन करे, स्पर्धा करे। बोला क्या ये सब मिला लगा है। बोला ये तो क्या, मैं पॉजिटिव हूँ लाइफ के लिए, मेरे खुद के बॉडी के लिए, अगर दूसरा कोई रहेगा तो क्या होगा। और उतने में मेरे लड़के ने फ़ोन किया कि अभी ये दूसरा एजेंसी है, वो बिना टेस्ट वो अप्रूव कर लेता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर बाद में 4 दिन के बाद में मुझे फ़ोन आता है कि आपके स्ट्रेस टेस्ट के रिपोर्ट नहीं लेकर गए आप, आपको इतना पैसा बनना है। मतलब कि मुझे तो स्ट्रेस टेस्ट करना ही नहीं था, वो आपने प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि आपने साइन नहीं किया था। हाँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट की, आप रिपोर्ट रखो, मैं पैसा भी नहीं दूंगा। बोला पैसा भी नहीं दूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये धतिंग हर जगह पे चलता है, उनके इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी रहते हैं। आज आप देखो कितने लोग आपको सप्लीमेंट बेचते हैं कैल्शियम डेफिसिट। हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पर सन है और 12 महीना सन मिलता है हमको। तो सुबह सन में निकलिए ना,
तुम्हें कैल्शियम की क्यों लेने है? और सप्लीमेंट, और मैंने एक जन को बताया कि आप सप्लीमेंट बेचते हैं, तो आपकी सप्लीमेंट का मैंने एक बॉटल लिया, वो 1200 का बॉटल है, उससे मेरे डिफिसिट खत्म हो जाएंगे, आप गारंटी दे सकते हैं? तो बोले कि नहीं। तो बोले क्यों बेचते हैं? बोला जब आपको खुद को भरोसा नहीं है कि मेरी डेफिसिट इसके माध्यम से खत्म हो जाएगी, तो यानी तुम मुझे कायम का उसका मेडिसिन प्रोन बना देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि लोगों का धंधा है। दिस मेडिकल इंडस्ट्री हैज बिकम अ फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि मुनाफा, पैसा कमाना, डिविडेंड देना। कोई अभी पहले डॉक्टर का धर्म था कि लोगों की सेवा करना, आज सेवा रहा नहीं है। तो हमारी सेहत का ख्याल हमें खुद को करना है, और हमें खुद को ख्याल कैसे करेंगे? ये सब जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उन सब के जज आप हैं। आपकी क्षमता के हिसाब से करिए और ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो करना है। हमें कोई बोलने की वजह से नहीं करना है। मुझे अच्छा लगता है, हमने किया तो मुझे अच्छा लगा तो मैं करते रहूँगा। मेरा कोई कंपल्सन नहीं, मेरा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये साधारणपणे हर जीवन के लोगों के लिए, हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति जो सोसाइटी के उनके लिए लाफ्टर थेरेपी वर्क्स एज अ वंडर। जिनकी जो डेफिसिट है, जिनकी जो खामियां इसके माध्यम से कम होती है। और जो कितने डिसीज के ऊपर दिस वर्क्स एज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मालूम है? बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलिसिस, स्लीप डिस, इंसोमिया, एलर्जी, पार्किंसन, एड्स, कैंसर, ये सब के ऊपर दिस वर्क्स एज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो इतनी सारी चीज़ों के ऊपर कोई एक दवा काम करती है, और वो दवा आपके खुद के पास है, आपको कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है, आपके पास एबंडेंस है, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करें? तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? जोर से बोलिए हाँ कि ना? हाँ हाँ, हमें झिझक मत करिए। तो विद दिस बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करें। खड़े हो जाइए। और प्रैक्टिकल करने के पहले, क्योंकि उनका जो शेड्यूल टाइम में नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, this is for the library, you can just take it around. You focus and take it for the library. जो मैंने लाफ्टर थेरेपी का कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया है, और करीबन 20-25 अलग अलग प्रकार के लाफ्टर हैं। ये मैं हमारी सीडी जो अभी निकली है दिसंबर में, तो मैं हेल्प लाइब्रेरी के लिए प्रदान करूँगा, तो वो उनका स्वीकार करें, फिर बाद में ले लीजिएगा। ओके। हमारी उंगलियां फैलाइए, हमारी उंगलियां फैलाइए, और आप खुद महसूस करिए कि आप थॉटलेस हो रहे हैं कि नहीं, आप थॉटलेस हो रहे हैं कि नहीं। हो आहा 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 हो आहा। आपके हाथ में एक्यूप्रेशर के सब पॉइंट है, और ये जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपकी जो वेन है, आपकी जो नसें है, वो सब आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी, और आपके हर ऑर्गन इसके माध्यम से भी एक्टिवेट होंगे, और अच्छा लगेगा आपको। और जब भी आपको कंटाला है ज़िंदगी में कि नींद आती है, सुस्ती आती है, ऐसा कुछ भी होता है, करीबन 1 मिनट ये करिएगा, आपकी सुस्ती भाग जाएगी। बच्चों को ग्रैंड चिल्ड्रन को अवश्य बताइए कि अगर पढ़ाई करने के टाइम काफ़ी टाइम कंटाला आता है, नींद आती है, तो अगर ये करा लिया उनसे जोर में, और 1 मिनट में द पर्सन विल फील अ फ्रेश। चाय पीने की ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं, कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है।
तो दिस इज वन। अभी सेकंड कि जब हम लोग बैठे थे, आप बैठ के मुझे सुन रहे थे, तो आप आधा ब्रीथ ले रहे थे, तो कंप्लीट ब्रीथ आप नहीं ले रहे थे। तो जब हम आधा ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट करते हैं तो रेसिडुअल एयर जो हमारी चुनी हवा है वो अंदर जमी रहती है लंग्स में, तो वो हवा हमें बाहर फेंकनी है। जब तक पूरी हवा बाहर नहीं जाएगी तो पूरी हवा से ये भरेगा नहीं, और जो ग्रेजुअली जो हमारी लंग्स की इलास्टिसिटी है ना कम हो जाती है, कैपेसिटी कम है, जो हम लोग कहते हैं बार बार कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, पंप लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो इसके माध्यम से पंप की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हमने एक लाफ्टर बनाया है, हो करके जोर से बोलेंगे एंड ब्रीथ आउट करना है, तो यू विल फील एक्सेल। आप जो ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो आप महसूस करेंगे, और ये करेंगे तो ज़्यादा फोर्स आता है, ये करेंगे तो ज़्यादा फोर्स आता है। तो दोनों चीज़ें साथ में करेंगे तो एक्सेल करना है। और थोड़ा ऐसे ही आ जाइए ना, थोड़ा ये बाजू आ जाइए, हाँ ये बाजू आ जाइए, तो यू कैन सी मी अराउंड। हाँ हाँ, वहाँ से करेंगे तो भी चल जाएगा, वहाँ से करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, हाँ, तो हम लोग साथ में मिलकर शुरू करेंगे। कम ऑन, 1 2 3, हो 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 हो। अलग अलग नहीं, एक साथ में आवाज, सब लोग की साथ में आवाज आए। 1 2 3, हो 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 हो। महसूस हो रहा है? हाँ, जोर में हवा बाहर आ रही है, हाँ हो रहा है ना। तो क्या होता है कि जब आप हवा बाहर निकालेंगे तो ही रिप्लेस होगे, तो ही ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो प्योरीफिकेशन अच्छा होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तो ब्लॉकेट निकलेंगे। जो हम लोग जो बातें करते कि हमारे ब्लॉकेट, क्योंकि ब्लॉकेट के लिए हम लोग कभी कुछ करते हैं नहीं करते हैं, सिर्फ गोलियां लेते हैं। और गोलियों आज मोर देन 33% मेडिसिन आर फेक इन द मार्केट। जो खोटी दवाइयाँ बाजार में रहेगी तो वो असर करेगी, उल्टी हार्ड असर करेगी, आपकी तबीयत खराब करेगी। तो गोलियों से लंबे रहिए, और जो नेचर ने आपके पास दिया है कि उसका भरोसा करिए। अब की बार और एक हमने फेशियल वार्म अप के लिए एक लाफ्टर बनाया। हा हा ही, हाँ के टाइम मुंह खोलना है, ही के टाइम मुंह बंद करना है, हाथ ऊपर करना है, हाथ नीचे करना है। हाथ ऊपर गए तो लंग्स एक्सपांशन होता है, हाथ नीचे करेंगे तो नॉर्मल आता है। तो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। 1 2 3, हा हा ही 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 हा हा ही। ओके, अब इसमें क्या करिए, स्पीड बढ़ाएंगे, और जब मैं क्लैप करूं तो हम लोग जब डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते सब लोग, और हंसते, वो इस तरह से हंसना है और उसे बंद करना है। और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं तो आप एक दूसरे के पास जाइए, इस तरह से क्लैप करिए उनके साथ में, उनका चेहरा देखिए, उनको आपका चेहरा देखने के दीजिए, तो दोनों की हंसी उसके माध्यम से बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, मैं क्लैप करूँ, फैमिली लाफ्टर से ऐड करेंगे, और एक दूसरे से आप हाथ मिलाएंगे। तो शुरू कर दे, 1 2 3, हा हा ही हा हा हे 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 कैसे लग रहा है? एक ब्रीथिंग करिए, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग करिए, ब्रीथिंग करिए।
अब की बार हम अपने आप की प्रशंसा करेंगे, हम अपने आप की प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे? इस तरह से उंगली बताइए कि मेरे जैसा हेल्थीएस्ट कोई नहीं, मेरे जैसा हैप्पीएस्ट कोई नहीं, हाँ मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं। मन ही मन बोलना है, अपनी खुद की प्रशंसा करनी है, अपनी प्रशंसा खुद की करनी है। ठीक है, तो इस तरह से उंगली बताइए, मैं 3 कहूँगा, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। कम ऑन, 1 2 3। वेरी गुड। जब तक आप अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे तब तक आपकी और कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा। पहले खुद की प्रशंसा आप खुद करिए, फिर देखिए दुनिया आपको, हमें झुकाना वाला चाहिए तो ही झुकेंगे। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जब तक आप अपनी नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा, इवन परिवार के लोग भी नहीं करेंगे। तो खुद की प्रशंसा खुद करिए। मैं हूँ, ये हूँ, मैं ये हूँ, बोलते रहिए तो लोग बोलेंगे आपके लिए। नहीं तो बाद में आपके पास कितना भी टैलेंट रहेगा, लेकिन आप खुद किसी को नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? तो आपकी टैलेंट के लिए हमें अपने पर गर्व होना है कि आई एम दिस, आई एम दिस, व्हाई नॉट। समझे? एक ब्रीथिंग करिए। कभी कभी क्या होता है समाज में कि कोई नेगेटिव हादसा हो गया जिंदगी में, तो वो नेगेटिव हादसा हमेशा हम ही रहता है। चाहे वो एक्सीडेंट हो गया हो, कोई गुजर गया हो, चाहे आग लग गई हो, बिजनेस लॉस हो, वगैरह वगैरह कुछ रहता है। वो हमेशा अब फुर्सत में रह के तो वही चीज़ें याद आती हैं, थोड़ा ही से आ जाए तो वो फुर्सत में रहेंगे तो वही चीज़ बार बार याद आती है। तो हमें उसे निकालना है, उसे कम करना है, उसे कम करना है, निकालना है। तो वो निकलेगा कैसे? जब तक आप अपने ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें, अच्छाइयाँ उसे याद नहीं करेंगे तो वो बाजू पे जाएगी नहीं। हमारे बहुत सारे किस्से हैं ज़िंदगी के कि आज अगर 50 साल, 55 साल, 60 साल में इतने सारे किस्से रहेंगे कि पूछो मत। तो उसे हमें एक एक करके याद करना है। उसे एक एक करके याद करेंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी कम होगी और आप पॉजिटिव बनेंगे। तो हमारे जो पॉजिटिव किस्से हैं वो सब मुट्ठी में बंद कर लीजिए, मुट्ठी में बंद कर लीजिए, इस साइड में रखें और एक एक करके यहाँ खोलना है, उसे याद करना है और खोलना है। तो ऑटोमेटिकली वो जो नेगेटिविटी वाला जो किस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। हमें कोशिश करनी है उसे निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए हाथ, यहाँ पर रखिए, शुरू करिए। कम ऑन, 1 2 3। ये ये वेरी गुड। तो क्या होता है मालूम है कि ऑटोमेटिकली जो खराब की जो हो गया वो हो गया, लेकिन हाउ टू एलिमिनेट इट शुड नॉट आपके ऊपर हावी होना नहीं है। आपकी तबीयत है कि आपका दिन है कि परिवार की शांति, उसके माध्यम से निकल जाएंगे। तो जो है हकीकत हो गई उसे बाहर निकालने की कोशिश करिए। हम बार बार लोगों को कहते कि अगर यहाँ पर 100 स्विच लगी हुई है तो सही बटन अगर जिनको मालूम है उसको एक ही टाइम में वो बटन करेंगे, लाइट हो गई, पंखा हो गया, जो भी कुछ करना है। नहीं तो बाकी को 99 बटन ढूंढने पड़ते हैं। वो 99 चीज़ें करने के बाद में वो बटन तुम्हारे हाथ में आता है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं वो पहला बटन है। डायरेक्ट वो बटन आपको मिल गया तो उसके माध्यम से उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। समझे? सॉरी। ऐसे तो हमारे करीबन 50 लाफ्टर है, 50 लाफ्टर है, लेकिन जो पॉजिटिविटी के जो भी लाफ्टर है वो हम लोग करेंगे। अब जो है ना, धनुष बाण छोड़ेंगे। बाण के माध्यम से हमारी खामियां हमारे सिवाय और कोई नहीं जानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वैर, ईर्ष्या, कटुता, कड़वापन वगैरह वगैरह जो विकार है उनमें से कुछ न कुछ विकार हम में भी है, सभी में है।
और हमारे विकार हमारी बीवी भी नहीं जानती, बच्चे भी नहीं जानते, कोई नहीं जानते। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे वो विकार बाहर फेंकने के लिए, तब तक वो विकार तुम्हारे अंदर बने रहेंगे। हमें कोशिश करनी है, हम कोशिश करेंगे तो हम लोग बाहर निकालेंगे। तो शुरू करेंगे, कम ऑन, 1 2 3, ये ये ओके ओके, वेरी गुड। एक ब्रीथिंग करिए। हमेशा आप कोशिश करिए कि जिंदगी में ये 3 शब्दों का हम अवश्य पालन करें। थैंक यू, सॉरी, मे आई हेल्प यू। अगर किसी ने भी आपके साथ में कोई भी कुछ जरा भी फेवर की है, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन ने आपको पानी लाकर दिया है कि आपकी चीज़ें लाकर दी है, तो उसे थैंक यू करिए। जो अगर गलती से भी आपकी गलती हो गई, गलती आपने खुद ने महसूस नहीं किया लेकिन किसी ने बताया कि आपने ये गलती की, तो गलती महसूस करिए, सॉरी। और आपसे कोई मदद लेने वाला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कहे तो सही कि मैं हेल्प यू, मैं हेल्प यू। देखो कितना फर्क पड़ता है जिंदगी में, क्योंकि जो भी झगड़े होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड चीज़ों के झगड़े होते हैं। उस दिन अगर आपने सॉरी बोल दिया रहता था तो वो ये यहाँ तक पहुँचता नहीं था। थैंक यू बोल दिया रहता था तो उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वो आपको सुनाएंगे, उस दिन मैंने इतना सारा किया फिर भी आपने थैंक यू क्लोजेस द इश्यू, सॉरी क्लोजेस द इश्यू, मे आई हेल्प यू विल मेक योर गेस्चर पीपल फील। तो ये सब चीज़ें करने से हम जो चैप्टर है उसे वहाँ का वहाँ बंद करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में कहीं कुछ अराइज होता है तो ये सब कैरी फॉरवर्ड बातें आपके साथ में नहीं आए हैं, समझे, वहाँ उसका एंड कर देते हम लोग। और बहुत अच्छी बात और भी एक है कि जो हंसता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है, जो हंसता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है, और जो हंसाता है वो ईश्वर के करीब रहता है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग ईश्वर के करीब रहें। सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, अपने तक सीमित मत रखिए। ये जो हास्य थेरापी है वो आपके परिवार इस्तेमाल करेंगे तो परिवार अच्छा बनेगा, आपके लोग मित्र लोग इस्तेमाल करेंगे तो मित्र लोग अच्छे हो गए, उनका परिवार अच्छा बने, मोहल्ला अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि कम्युनल हार्मनी, इसके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसी को कोई भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। आपने किया तो हर व्यक्ति कर पाएगा। इसमें कोई हिंदू है कि मुस्लिम है, ईसाई है कि पारसी है, कि दिस इज़ द सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन, वर्ल्ड पीस, बिना शब्द का इस्तेमाल किया। तो वी वांट टू गो मच अहेड ऑफ इंडिविजुअल, कि हमें पूरे समाज को जोड़ना है, और समाज की जो भी कुछ अनियमितता है उसे नियमित करनी है। कि ऊंच नीच का भेद है, कि जाति उनका भेद है। हमारी जो प्रार्थना भी रहती है वो वननेस की रहती है। हम लोग ये मालिक तेरे बंदे हम गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना गाते हैं, तो यानी वो जाति का भेद नहीं रहता है। और जो हमारे जो पॉजिटिव स्लोगन्स हैं, दे आर वंडरफुल टू। मैं कहूँगा हाउ आर यू, आप कहेंगे वेरी गुड। मैं कहूँगा हाउ आर यू, आप कहेंगे वंडरफुल। फिर बाद में ब्यूटीफुल, आप कैसे हो, बहुत अच्छे। और ये 3 बार बोलना है, 3 बार बोलना है। हाँ, तो हम लोग करेंगे। हाँ, तो शुरू कर दें। हाउ आर यू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ आर यू, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। हाउ आर यू, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप कैसे हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, जिंदगी में आज के बाद कोई भी आपको पूछेगी आप कैसे हो, तो ऑलवेज से वेरी गुड। चाहे वो आपकी तबीयत के लिए हो, चाहे आपके धंधे के लिए हो, चाहे आपके परिवार के लिए हो। जो वेरी गुड बोलता है वो वेरी गुड बनता है, वेरी गुड उसका धंधा बनता है। लेकिन जो ठीक है वो ठीक से बाहर नहीं आता है।
तो हमें ठीक में नहीं होना है, हमें वेरी गुड में होना है। और वेरी गुड में बन गए तो फिर बाद में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारी जो प्रार्थना है, ये मालिक तेरे बंदे हम लोग कहेंगे, उनमें जो लाइन है ताकि हंसते हुए निकले दम, उसके बदले जिए हम गाना है। और वही लाइन वापस रिपीट करनी है और जिए हम करके हाथ ऊपर करके हंसना है। ओके, हाँ, अपने अपने इष्ट देव को याद करिए। नमस्कार। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए जिए हम। है मालिक तेरे बंदे हम, ताकि हंसते हुए जिए हम। किसी को कोई सवाल रहेगा? कोई सवाल है? कोई कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना है? कुछ